Hello everyone. Today's video is going to be special because we are going to see a miniature of Masjid al-Aqsa in a famous church of Georgia. मस्जिद अक्सा का जितना इम्पोर्टेंस इस्लाम में है उतना ही क्रिश्चियनिटी में और जूस रिलीजन में भी है, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं जो प्रॉफिट की लाइन बनकर आती है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चलती है, जहाँ तक मुसलमान पहुँचे हैं द फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम। जो क्रिश्चियंस हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम पर आकर रुक गए हैं, और हम सब जानते हैं जो भी क्रिश्चियनिटी में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनकी बिलीफ है और वो उन्हें जीसस कहते हैं। तो जैसा कि हम मानते हैं और क्रिश्चियंस भी कहीं ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई थी, उनकी रूह को आसमान पे उठा लिया गया था और वो ज़िंदा है आसमानों पे अभी भी। तो जो उनकी रूह को आसमान पे उठा लिया गया था वो जेरूसलम से उठाया गया था और उनकी पैदाइश भी जेरूसलम से हुई थी। यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी में भी जेरूसलम का मस्जिद अक्सा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और शायद इसी वजह से उन्होंने इतना खूबसूरत सा मॉडल चर्च में बना के रखा है। अस्सलाम वालेकुम ट्रैवलर्स, वेलकम टू today's episode of Travel with Faza. Join me in this fascinating journey, a stunning church surrounded in natural beauty, and experience the profound spirit of peace and spirituality. This place is known as Holy Trinity Cathedral of Tbilisi, the main Georgian Orthodox Church located in Tbilisi, the capital of Georgia. It is constructed between 1995 and 2004. It is the third tallest Eastern Orthodox cathedral in the world and one of the largest religious buildings in the world by total area. So a quick Georgia travel tip, that don't miss out this destination if you are planning your trip to Georgia. So let's move on towards the next destination of Georgia, Clock Tower. Yes, it's known as the Leaning Tower of Tbilisi too. It is one of the city's most unusual building, tucked into a side street of Old Town. It truly is a bizarre structure, with a tower on the perpetual brink of falling down and only a steel beam holding the tower in place. A huge clock sits in the middle of the tower with a leaning column on its side. The surprising side is it's not an old structure, but it is a modern tower attached to the puppet theater of renowned puppeteer Rezo Gabriadze. He is the brainchild behind this structure, as well as the building to its side, which houses the actual theater. Gabriadze built the theater himself over a time span of 30 years, reusing old pieces from broken structures of the old town and the buildings destroyed following a major earthquake. The weird clock tower was added in 2011 after a 4-year construction phase. It's hard not to fall in love with the playful architecture of the tower. This is especially true when on the hour a window opens at the small balcony at the top and an angel strikes a bell. Below the clock, a screen opens and shows the circle of life. Boy meets a girl, marriage, childbirth, and funeral.
Aside from being a magnificent and truly unique structure, the tower is also an impressive statement against soulless urban modernization and the semi identical glass and steel structures that continue to pop up in nearly every city on the planet, including Tbilisi. While modern structures continue to appear in Tbilisi, large part of the old town are in a shocking state of disrepair. And while a lot of reconstruction work has been carried out, the city's government seems to be more eager to set modern landmarks than preserve the old ones. तो ये जो डेस्टिनेशन आप देख रहे हैं उसका नाम है क्लॉक टावर और इसे लीनिंग टावर भी कहा जाता है। ये तिब्लिसी में है और ये कोई ओल्ड स्ट्रक्चर नहीं है पर ये एक मॉडर्न स्ट्रक्चर है जिसे पुरानी टूटी हुई बिल्डिंग्स के मटेरियल से बनाया गया है और जो बिल्डिंग्स अर्थक्वेक में टूट गई थी वो सारा सामान रीयूज़ करके ये बिल्डिंग को बनाया गया है और शायद यही इसकी स्पेशलिटी है। 2011 में ये टावर का कंस्ट्रक्शन हुआ था जो 4 साल तक चला था और ये टावर सिर्फ एक स्टील बीम के सहारे खड़ा है। इसी के साथ एक पपेट थिएटर भी है। हर 1 घंटे के बाद एक एंजल बाहर आता है जो बेल रिंग करता है और उसके बाद ये थिएटर में एक शो चलता है जिसमें पूरी लाइफ साइकिल बताई जाती है, जिसमें एक लड़का लड़की मिलते हैं, उनकी शादी होती है, उनकी फैमिली स्टार्ट होती है और लास्ट में जनाजा बताया जाता है जो कि हमारी एक आइडियल लाइफ साइकिल है, पैदाइश से लेकर इंसान की आखिरी सांस तक की, मौत तक की। तो अगर आप जॉर्जिया जाते हैं तो ये जगह को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करिएगा। और अब जब भी ये जगह विजिट करें तो ऐसा टाइम सिलेक्ट करें कि आपको शो देखने के लिए इंतज़ार ना करना पड़े, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हर 1 घंटे के बाद शो चलता है। तो अगर आप पहुँचे हो 9:05 को तो वो शो पूरा हो चुका होगा। तो बेहतर है आप ऐसा टाइम पसंद करें कि बस वो शो स्टार्ट ही होने वाला हो, जैसे कि 9 बजे से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाए या 10 बजे से 5-10 मिनट पहले पहुंच जाए, तो आपको ये शो देखने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सो नाउ वी रीच टू द प्लेस विच वेयर मदर ऑफ जॉर्जिया इज लोकेटेड। The statue was erected on the top of Sololaki Hill in 1958, the year Tbilisi celebrated its 1500th anniversary. Prominent Georgian sculpture designed the 20-meter aluminum figure of a woman in Georgian national dress. Before we go further, please remember to subscribe and hit the notification bell, like and share with fellow explorers. If you look carefully at the statue of Mother of Georgia, then you will realize that she symbolizes the Georgian national character. In her left hand, she holds a ball of wine to greet those who come as a friend, and in her right hand is a sword for those who come as enemies. Mother of Georgia is called Kartlis Deda in native Georgian language. We initially viewed the statue from the bottom of the hill. Now we are approaching the spot for a closer look, but surprisingly we can only see the backside and a partial view from this proximity. To get a closer view, we need to take a cable car ride. It will take 2 to 3 minutes to reach there through the cable car, and it will cost 15 Georgian lari per person for a round trip. But believe me, you won't regret visiting this place, because it is not only the statue which is inspiring, but the bird's eye view of Tbilisi is simply stunning. The view of Tbilisi from above is amazing. You will see the city's old forts, pretty old town, and riverside from a unique angle. You will see a different side of Bridge of Peace.
तो ये आज का हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है, जिसे मदर ऑफ जॉर्जिया कहा जाता है, और जहाँ पे पहुँचने के लिए आपको केबल कार से आना पड़ता है। इसे जॉर्जियन लैंग्वेज में कार्टलिस डेडा कहा जाता है, और ये एक बहुत ही यूनिक स्टैचू है जिसे 1958 में बनाया गया था, जो साल सेलिब्रेट किया गया था तिब्लिसी की 1500 एनिवर्सरी के तौर पे। जो स्टैचू है वो बेसिकली 20 मीटर एल्यूमिनियम फ्रेम से बनाया गया है, जिसे जॉर्जिया का नेशनल ड्रेस पहनाया गया है। स्टैचू के बाएं हाथ में शराब का कप बताया गया है, उनके लिए जो दोस्त बनकर आते हैं, और दाएं हाथ में तलवार बताई गई है, उनके लिए जो दुश्मन बनकर आते हैं। तो उसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सिंबलाइज किया गया है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने स्टैचू को दोनों साइड से कवर करने की कोशिश की है, बॉटम ऑफ द हिल से भी और हिल के ऊपर जाने के बाद भी। जब बॉटम ऑफ द हिल से उसकी फ्रंट साइज दिखाई देती है, और हिल पर जाने के बाद हम सिर्फ बैक साइड और उसका जो साइड पोर्शन है वही देख पाते हैं। तो अगर आप केबल कार में वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 15 जॉर्जियन लारी लगते हैं, और जो टाइम है वो 2 से 3 मिनट लगता है। और वहाँ आप जब एंटर करोगे या एग्ज़िट करोगे, उस वक्त आपको ये पूरा मार्केट दिखाई देगा, जो मार्केट बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे बहुत तरह तरह की चीज़ मिलती है। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी जो शायद स्पेसिफिकली वो आपको जॉर्जिया में ही मिलेगी और कहीं पे नहीं मिलेगी। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं, और फिर यहाँ से आप वापस से केबल कार लेकर आपको रिटर्न होना पड़ेगा, और यहाँ से आप पीस ऑफ ब्रिज का बिल्कुल अलग व्यू देखेंगे, और जो सिटी व्यू आता है वो भी सही में देखने लायक है, बहुत ही लाजवाब व्यू। तो अगर आप जॉर्जिया आ रहे हैं तो ये जगह विज़िट करना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर म्यूज़िकल कल्चर भी बहुत है, तो हमें हर जगह पे कोई एक बंदा दिखाई देता है जो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर म्यूज़िक बजा रहा होता है, और फिर लोग उसे आसपास एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह आने वाली है। तो देखते रहिए मेरा चैनल, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द।